Friends, today we discuss electric discharge machine. Basically, in this machine, the residue effect of electrical discharge on metal that was first detected in 1970. The machining of hard metals which is not possible easily by conventional one. That's why we need to use this electrical discharge machining. This machining is popular because few reasons. That is, first one is it is suitable for electrically conductive material. Now in this case the workpiece is not subjected to mechanical deformation. That's why a slender or fragile workpiece which is difficult to hold properly can be machined with the help of this machining. No heating in bulk of material is there, and complex die contours with high degree of accuracy and surface finish can be obtained. These are the few basic reasons for adoption of this particular process. Now in this case it is known as the simply spark machining because thousands of sparks that may occur or erosion of workpiece is achieved by repetitive spark that is maintained between tool and workpiece. That is the basic principle of material work. In this case material removal, again it is a combination of melting and evaporation. The process may be used for machining any material irrespective of its hardness, but only condition is that it must be electrical conductor. The rate of metal removal and the resulting surface finish can be controlled by proper variation in the energy and duration of spark discharge. यानी आपका मटेरियल रिमूवल रेट अगर आपको कंट्रोल करना है तो इनपुट एनर्जी हम लोग जो उसको देंगे जिसके हिसाब से स्पार्क आपका जनरेट होगा एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्पार्क डिस्चार्ज, इसके ऊपर मटेरियल रिमूवल रेट डिपेंड रहेगा. A liquid dielectric like paraffin or some light oil like transformer oil or kerosene is always used in this process. Now basically, first of all we discuss. In this case, tool is made cathode and workpiece is anode. When a difference of potential is applied between two conductors, that is cathode tool and anode workpiece, which is immersed in dielectric fluid. The fluid is ionized enough at this potential difference value. Therefore, heavy positively charged ion flow from anode to cathode, and due to their heavy weight, they can acquire high velocity. That's why when this positively charged ion when collide with the cathode that is on the tool, they liberate less amount of energy. But negatively charged electrons or lighter electrons, they travel from cathode to anode, and due to lighter weight of electrons they acquire high velocity, and when they strike at higher velocity at anode they release at high amount of heat. That's why friends, the major amount of heat is released at workpiece, but at the same time some amount of heat is also released at tool. थंब रूल से हम लोग बोल सकते हैं नियरली 20-25% amount of heat is released at tool and 60-70% heat is released at workpiece. इसका डिसएडवांटेज ये है कि ड्यूरिंग ईच स्पार्क major amount of work is removed from workpiece, but at the same time थोड़ा सा मटेरियल ये टूल का भी रिमूव करता है. That is the biggest disadvantage of this particular process. As we discussed that during the spark major amount of heat is released at workpiece, but at the same time some amount of heat is released at electrode or tool also. That's why जहाँ पे आप देख रहे हैं मेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल कहाँ से रिमूव हो रहा है वर्कपीस से, बट एट द सेम टाइम सम अमाउंट ऑफ वर्क इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम टूल. दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. एज वी सी इन द फिगर, द मेन पार्ट्स आर दिस करंट कंट्रोल, सर्वो कंट्रोल मैकेनिज्म, दिस मूवेबल इलेक्ट्रोड, वर्कपीस, dielectric fluid and the tank. So first of all we discuss this servo control mechanism. Basically the servo motor is actuated by difference between reference voltage and gap brake voltage which feeds the tool towards the workpiece. यानी एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा, एक उन्होंने रेफरेंस वोल्टेज सेट किया है. ये रेफरेंस वोल्टेज इज डिपेंड अपॉन द गैप बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस. अगर ये वोल्टेज वेरी होता है तो ये गैप भी वेरी होती है. जैसी गैप वेरी होती है यानी जैसा उन्होंने कहा है कि रेफरेंस वोल्टेज एक होना चाहिए, उससे अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होता है अकॉर्डिंगली ये इसका फीड होता है. दैट इज मूवेबल इलेक्ट्रोड टू मेंटेन दैट रेफरेंस वोल्टेज कांस्टेंट. यानी इसके बेसिक एम ये है टू मेंटेन अ कांस्टेंट गैप बिटवीन टूल एंड वर्कपीस. अगेन आई से द मेन फंक्शन ऑफ सर्वो कंट्रोल इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट गैप बिटवीन टूल एंड वर्कपीस. वो आइदर वोल्टेज वेरी करेंगे या करंट वेरी करेंगे.
Okay, there is a speed control with the help of which we can control the movement of this electrode. A proper gap must be maintained, ठीक है, to obtain a spark. अब यहाँ पे क्या होता है सर्वो कंट्रोल मैकेनिज्म में, they have to maintain this gap automatically. और गैप कितनी रहती है, एक अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट कहेंगे कि तो ह्यूमन ईयर का जो थिकनेस रहता है उतना है. Now there should not be any physical contact between tool and workpiece, otherwise arcing would be there and it will damage the workpiece and tool. अब यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि इसकी मूवमेंट कंट्रोल होती है आइदर रेफरेंस वोल्टेज से या रेफरेंस करंट से. फॉर एग्जांपल अगर गैप बढ़ गई तो क्या होगा, गैप बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल दिस गैप इज इंक्रीज, तो क्या होगा, इनको मैसेज जाता है एंड इट एडवांस इज द टूल टू मेंटेन द गैप. अब दूसरी इसमें क्या होता है कि अगर गैप कम हो जाती है, ये नज़दीक जाता है टूल के, तो क्या होता है, इसको मैसेज जाता है और ये एडवांसमेंट जो उसका कम हो जाता है एंड आपको एक जो गैप चाहिए वो मेंटेन हो जाती है. अगेन आई रिपीट, द मेन फंक्शन ऑफ सर्वो कंट्रोल इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट गैप. As we see in the figure, the main elements of this setup include the power supply source, dielectric medium, workpiece and tool, servo control mechanism, speed reduction gearbox, rack and pinion for tool feed. इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने जैसा आपको बताया था कि देर इज़ वन अरेंजमेंट टू कंट्रोल द एडवांसमेंट ऑफ टूल. गैप बढ़ती है तो वी हैव टू इंक्रीज द एडवांसमेंट ऑफ टूल, गैप अगर कम होती है तो वी हैव टू रिड्यूस द एडवांसमेंट ऑफ टूल. ओके, नाउ बोथ द टूल एंड वर्कपीस आर कनेक्टेड टू द डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स. जैसे कि हमने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था, वर्कपीस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट्स व्हाई मेजर अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज एट वर्कपीस, एंड टूल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, that's why less amount of heat is released at tool. Okay, now the idiom working. The workpiece and electrode, or we can say tool, are separate by a gap. ठीक है, it is called as the spark gap, approximately 0.0052 to 0.05 mm रहती है. The gap is filled by dielectric which breaks down when a proper voltage is applied between these two, जैसा कि हमने कहा था, to ionize this particular field. A circuit voltage 50 to 450 volt is applied. ठीक है, electrons start flowing from the cathode and due to electrostatic field and the gap is ionized. The electric spark so caused directly impinges on the surface of the workpiece. It takes only a few microseconds to complete the cycle and the spark discharges heat the workpiece with considerable force and velocity. टेम्परेचर कितना जनरेट होता है, नियरली 10,000 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये स्पार्क की, ये इट हैपन्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम, right? It happens thousands of times, and this during each sparking a very micro or tiny particles are loose or remove or melt or vaporize from the workpiece as well as from the tool. These forces used to melt the metal and portion of it may be vaporized even. Now these vaporized or melted particles are thrown into the gap by the electrostatic or electromagnetic forces which may be driven away by the liquid dielectric. Now यहाँ पे एक बात ख्याल में रखना है कि यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द इरोजन इज टेक्स प्लेस ऑन बोथ टूल एज वेल एज ऑन द वर्कपीस, लेकिन एज दिस वर्कपीस इज कनेक्टेड टू द एनोड, दैट्स व्हाई मेजर अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज एट वर्कपीस. ठीक है, वन अनदर रीजन इज देयर, इट इज बिकॉज द टूल टिप इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव फोर्सेस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टिंग इन स्लोअर इरोजन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स सरफेस. नाउ again the most important point, the rate of metal removal depends upon the discharge current and duration of pulse and rate of pulse repetition. यानी फिर से बताता हूँ, हम लोग कितना करंट अप्लाई कर रहे हैं, पल्स का ड्यूरेशन कितना है, रेट ऑफ पल्स रिपीटेशन यानी 1 सेकंड में कितने बार स्पार्किंग हो रहा है. ऑन दिस 3 फैक्टर्स द रेट ऑफ मेटल रिमूवल डिपेंड्स. नाउ वी डिस्कस द टूल और इलेक्ट्रोड. यहाँ पे एक बात ख्याल में रखना है कि टूल और इलेक्ट्रोड इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ वर्कपीस. नाउ टूल शेप इज टू बी फॉर्म एज अ कैविटी इन द वर्कपीस, यानी हम लोग कह सकते हैं रिवर्स शेप ऑफ द टूल इज प्रोड्यूस. ठीक है, तो इन शॉर्ट शेप एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्कपीस इज डिपेंड अपॉन शेप एंड एक्यूरेसी ऑफ द टूल. अब यहाँ पे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है ईडीएम टूल की, दैट इट मस्ट बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, वो तो हमको पता है. इट मस्ट बी आवर गुड मशीनेबिलिटी. मशीनेबिलिटी क्यों चाहिए, बिकॉज कॉम्प्लेक्स शेप्स हम लोग उसको दे सके. वी कैन प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स शेप्स ऑन द टूल. इट शॉ लो इरोजन रेट ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग ईच स्पार्क सम अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम
tool also, that's why it must have low erosion rate. Then it show low electrical resistance, obviously wear rate कम होना चाहिए करके, high melting point again for low wear rate and high electron emission. Okay, these are the basic requirement of idiom tool material. Now we see what are the choices for tool or electrode material. Common choices उन्होंने दिए copper, brass, alloys of zinc, tin, hardened plain carbon steel, copper, tungsten, etc. etc. Now सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल. फ्रेंड्स, मैं आपको ये पैरा बताना चाहूँगा. यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर टूल मटेरियल आपका कॉपर रहता है तो वियर रेशियो उसका लो है, मेटल रिमूवल रेट इज़ हाई ऑन द रफ रेंज, फैब्रिकेशन इज ईजी, ठीक है, एंड कॉस्ट इज हाई, वी कैन अप्लाई इट ऑन ऑल मेटल्स. फॉर एग्जांपल ब्रास, वियर रेशियो हाई, मटेरियल रिमूवल रेट इज़ हाई, फैब्रिकेशन ईजी, एंड टंगस्टन. दीज आर द फ्यू रेफरेंसेज दे हैव गिवन. आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रोड मटेरियल. इस वजह से मैंने आपको बताया. जैसा आप हमने डिस्कस किया यहाँ पे फ्लूइड यूज़ होता है, उसका जनरली जो डिटेल्स है दैट इज इट इज़ रिक्वायर्ड एट 2 kg/cm² और लेस. देन करंट का उन्होंने मेंशन किया है 0.5 to 400 एम्पियर्स, वोल्टेज 40 to 300 वोल्ट DC. सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं पल्स ड्यूरेशन, दैट इज 2 to 2000 माइक्रोसेकंड, दैट इज द पल्स ड्यूरेशन. डाइलेक्ट्रिक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. केरोसिन करते हैं इट शुड हैव लेस O2 टू अवॉइड ऑक्सीडेशन. ये बातें ख्याल में रखो. नाउ वी डिस्कस द वियर रेशियो. वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ ईडीएम इज द वियर दैट ऑकर्स ऑन द इलेक्ट्रोड एट ईच स्पार्क. नाउ द टूल वियर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वियर रेशियो. वियर रेशियो क्या दिया उन्होंने, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव वर्क, वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव टूल, यानी वर्क के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव बाय टूल. ओके. नाउ वियर रेशियो ऑफ ब्रास इलेक्ट्रोड इज 1:1. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल वर्क पीस का मूव होगा उतना ही अमाउंट ऑफ मटेरियल टूल का मूव होगा. फॉर अदर मेटेलिक इलेक्ट्रोड इट इज अबाउट 3:1 और 4:1. यानी आप देखेंगे कि 20 to 33% अमाउंट ऑफ मटेरियल टूल का रिमूव होता है ड्यूरिंग ईच स्पार्क. ओके. विथ ग्राफाइट आपको हाईएस्ट, जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है आपको पता है 3500. द वियर रेशियो में बी रेंज फ्रॉम 5:1 to 50:1. ओके. एक बात ख्याल में रखना है, वियर रेशियो इट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव ऑफ द वर्क पीस टू द टूल. ओके. नाउ फ्रेंड्स विल डिस्कस द फ्लूइड. ऑलरेडी आपको पता है इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक वन बिकॉज हमको उसको आयोनाइज गैप कॉलम उसमें मेंटेन रखना पड़ता है. वन ऑफ द एम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज टू कैरी अवे द डेब्रिस. इट इज़ द फ्लूइड पम्प थ्रू इट, जैसा मैंने आपको बताया, एट अ रेट ऑफ 2 kg/cm². नाउ केरोसिन बेस्ड ऑयल यूज होता है, मैंने आपको अभी बताया उसका, बिकॉज इट शुड हैव यूज टू अवॉइड ऑक्सीडेशन, लेस O2 कंटेंट उसमें रहना चाहिए. ठीक है. नाउ वी डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ ईडीएम. सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एनी हार्ड मटेरियल वी कैन कट विद हेल्प ऑफ ईडीएम, लेकिन वो हार्ड मटेरियल इट मस्ट बी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव. ठीक है. नॉन मेटल्स सच एज प्लास्टिक, सिरेमिक्स कैन नॉट बी मशीन. यानी ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. यानी हमने पहले ही स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि वेरी हार्ड मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली कट बाय कन्वेंशनल वन कैन बी कट बाय ईडीएम, लेकिन वो मटेरियल कंडक्टिव होना चाहिए. ठीक है. दूसरा, अभी 2 मिनट पहले हमने डिस्कस किया वियर रेशियो. यानी यहाँ पे हमने देखा है कि मिनिमम 20 to 33% वियर होता है टूल पे ड्यूरिंग ईच स्पार्क. दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम. और ओवरकट प्रॉब्लम, दिस इज अनदर वन. थर्ड वन इज दैट इज अ रीहार्डन और हाई स्ट्रेस जोन इज प्रोड्यूस्ड ऑन द वर्क सर्फेस बाय द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग मशीनिंग. दिस ब्रिटल लेयर कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स व्हेन द पार्ट इज पुट इनटू द सर्विस. परफेक्टली स्क्वेयर कॉर्नर हम लोग इसमें कट नहीं कर सकते ईडीएम में. And high specific energy consumption, that is the biggest drawback of EDM, about 50 times that in conventional. यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि कन्वेंशनल से ये पॉइंट वो लैगिंग है, यानी 50 टाइम्स का उसका कंजम्पशन ज़्यादा रहता है. ओके फ्रेंड्स. नाउ वी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज यूजफुल इन टूल मैन्युफैक्चरिंग. टूल काउंटरिंग आपको कंटूर आपको मिल सकता है. रीशार्पिंग ऑफ कटिंग टूल्स आर देयर. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई. दिस आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ EDM. The question is, it is a great question. In EDM process, tool is made cathode and workpiece anode. That is first statement.
another statement in this process, if both the electrodes are made of same material, greatest erosion takes place upon anode. Okay, statement 2 क्या है, आपको क्या लगता है? I think both the statements are correct, already we have discussed. ठीक है, टूल इज कैथोड, वर्कपीस एनोड, और ग्रेटेस्ट इरोजन ये एनोड पे होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल इन ईडीएम प्रोसेस इज, क्या हो सकता है? आपके सामने ऑप्शन है, इट इज मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. ओके फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था. इन ईडीएम tool is made of, yes, it is preferably copper. Now the last question is, as tool and work are not in contact in EDM process, क्या ऑप्शन हो सकता है? लास्ट वन, ये पहला ऑप्शन है नो रिलेटिव मोशन. ऑब्वियसली रिलेटिव मोशन होता है हमको टू मेंटेन द कांस्टेंट गैप, टूल हमेशा एडवांस होते रहता है. नो वेयर ऑफ टूल ऑकर्स, वो तो होता ही है. नो पावर इज कंज्यूम, वो भी होता है. नो फोर्स बिटवीन टूल एंड वर्क ऑकर्स, क्योंकि कांटेक्ट नहीं होता है. नाउ दिस आर द 2 questions, rather I can say the assignment for you. First question is, keeping all other parameters unchanged, tool wear in electrical discharge machining would be less if the tool material has, again I repeat, EDM में क्या होता है? टूल वेयर ये कम होगा कब? इफ द टूल मटेरियल हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट, लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो स्पेसिफिक हीट. एंड फोर्थ ऑप्शन यू आर सीइंग, ये आपको देखना है फ्रेंड्स. दिस आर ऑल IAS और गेट क्वेश्चंस. ठीक है, दैट्स व्हाई स्टडी हार्ड फॉर दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, rather I would say the last question is, in EDM if the thermal conductivity of tool is high and specific heat of workpiece is low, then the tool wear rate and material remove rate are expected to be respectively, again I read, in EDM if the thermal conductivity of tool is high and the specific heat of workpiece is low, then the tool wear rate and material remove rate are expected to be respectively high and low, low and low, high and low, and low and high. Think over it. ठीक है, these are this question. One more question I would like to share with you. Which of the following is or are used as a low wearing tool materials in EDM? Copper and brass, aluminum graphite, silver tungsten and copper tungsten, cast iron. So these are the 3 questions related to this particular topic. ये जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं इसके लिए मुझे हेल्प हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बाय आर.के. जैन, देन सम ऑफ द कोर्स मटेरियल फॉर NPTEL, and I take most of this material from Professor Hassan Akhtar. Thank you.